Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is very important for all of you. The 2025 year is started now, and first of all wish you very happy new year. I wish that every candidate get the best opportunity this year and you always grow in your life. This video is related to 2025 hiring trends. What are the job strategy that you have to follow? What are the important points? Free preparation of MNC. You are from tech background, non-tech background, any of the courses like BE, BTech, BCA, BSc, BCom, MCom, MTech, MBA. सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा. आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी, हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें एंड एक टॉप एमएनसी में प्लेसमेंट ले सकें. So one most important point of this video that as we know that the 2025 year is started and we are waiting for the mass hiring. So every year, like most of the like 13 to 14 companies or more companies hire every year candidates through their mass hirings pattern. Okay, many of the companies hiring, that 13 or 14 companies are like Infosys, TCS, Accenture, Tech Mahindra, Capgemini, Cognizant, IBM, Hexaware. These are the mass recruiters. Every year they hire. बट इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज रहती है जो कि एवरी ईयर हायर करते हैं. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले दैट इज व्हेन मास हायरिंग फॉर द 2025 एंड व्हाट अबाउट द हायरिंग ट्रेंड्स. So I uploaded like 1 to 2 weeks ago, I uploaded 2 videos on our channel, upcoming mass hiring for 25 and mass hiring calendar for 25. The link is in the description, you can check that video. दैट कि इन्फोसिस की हायरिंग कब आ सकती है, व्हाट अबाउट द टीसीएस हायरिंग, व्हाट अबाउट कॉग्निजेंट एंड द 12 एमएनसीज हायरिंग कैलेंडर आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू. Okay, so that is very important for everyone, but we are expecting that in the upcoming month. Okay, if I'm talking about the TCS mass hiring for the 2025, so BPS hiring, HackWest competition, Code Vita, and the BSc Ignite and Smart hiring, already mass hirings are ongoing for the 2025 batch. And if I'm talking about the other companies, so we can expect the mass hiring in the coming month, most probably for the 2025 batch. ओके, सो ये वीडियो सभी बैचेस के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा. यू आर अप्लाइंग फॉर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बट यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स. वी आर डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग इन टूडेज वीडियो. सो मास हायरिंग वी कैन एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग मंथ. द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. Second point is be aware from fake jobs hiring, money taking platform और hiring process timeline. Okay, so देखिए, सबसे पहले the thing is on LinkedIn, on many of the portal you see that companies are hiring, they are giving 6 to 7 lakh packages, 8 to 10 LPA packages, and we are applying for that opportunity and like आपने उसमें कुछ पे कर दिया, money पे कर दी उस hiring के लिए. But the one thing, all top MNCs, no company is asking any money from candidate for any of the test or any of the interview. Okay, कोई भी कंपनी आपसे चार्ज नहीं करती है, तो इस स्कैम से बच के रहना है हमें. ऑलवेज अप्लाई फॉर ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी, always check that you are getting mail from official domain. Okay, suppose you are getting mail from TCS. Okay, so what is the official domain of TCS? @tcs.com. Okay, check @tcs.com. This is the official domain of TCS. सो फेक जॉब ऑफर्स से, स्कैम से बचना है. ओके, मनी पे बिल्कुल नहीं करना है. द थिंग इज, अभी आपके माइंड में एक पॉइंट, मतलब आपके माइंड में एक पॉइंट आएगा कि L&T एंड टेक महिंद्रा अनाउंस्ड द लाइक अपॉर्चुनिटी एंड दे आर चार्जिंग 500 रुपीज. बट द थिंग इज, आई ऑल्सो कन्फर्म्ड फ्रॉम देयर टीम विद इन द 2 weeks. 2 week तक हमने कंफर्म किया, उसके बाद हमें जाके पता चला दैट इज अ ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो एक टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. सो दे आर चार्जिंग द ट्रेनिंग फीस बिटवीन कंपनीज. किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी भी हायरिंग प्रोसेस के लिए कोई भी मनी चार्ज नहीं करती है. सो बी वेयर फ्रॉम फेक जॉब ऑफर्स. ठीक है, आपको कोई ऑफर मिल रहा है डायरेक्ट की ऑफर लेटर आ गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड द थर्ड थिंग इज, यू आर अटेंडिंग टेस्ट ऑफ एनी एमएनसी और लाइक कोई भी कंपनी हो, उसका टेस्ट अटेंड किया हो, इंटरव्यू अटेंड किया हो. अब उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ओके, लाइक कि जैसे आपने एग्जाम दे दी, इंटरव्यू दे दिया, इफ 2 to 3 month आर गॉन, लाइक जैसे 2 से 3 मंथ तक आपने वेट कर लिया, देर इज नो अपडेट फ्रॉम द कंपनी रिगार्डिंग द इंटरव्यू रिजल्ट. सो डोंट वेट फॉर अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी. सिंगल कंपनी के लिए वेट नहीं करना है, ऑलवेज अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज.
क्योंकि वो टाइम को आपको कवर करना पड़ेगा। द थिंग इज दैट ओके, हम सोचते रहते हैं टीसीएस अभी ऑनबोर्डिंग नहीं दे रही है, एक्सेंचर ऐसा कर रही है, कोई कंपनी ऐसा कर रही है, उसी सब में उलझ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में। ठीक है, आप खुद सोचिए कि you are starting your career from TCS, Accenture or any of the other MNC, you are starting your career from product based company. So आपको अपने आप को देखना है कि हम अपनी पोजीशन कहाँ पर देखते हैं कंपनी में। हम किसी कंपनी से स्टार्ट कर रहे हैं, सो हमें अपना लेवल कैसे इंप्रूव करना है, किस टाइप से हमें टॉप कंपनी के साथ वर्क करना है, टॉप पोजीशन पे वर्क करना है। ओके, सो द थिंग इज आपके माइंड में ये सब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा है कि अगर आपने अपना 100% दिया, ओके, बिकॉज मास हायरिंग एमएनसीज प्रोसेस इज वेरी डिलेड। ओके, क्योंकि किसी किसी कंपनी की प्रोसेस बहुत डिले होती है, कोई टाइम लेते हैं ऑनबोर्डिंग देने में, बिकॉज दे आर लाइक गिविंग ऑनबोर्डिंग टू मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स। ओके, ऑल ओवर इंडिया उनकी हायरिंग चलती है। सो अब इसमें दिमाग लगाएंगे, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, सो आगे कैसे बढ़ पाओगे आप सभी। ओके, ऑलवेज अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, स्किल सेट पे फोकस कीजिए एंड द थिंग इज मेन फोकस रखिए कि हमें कैसे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। आप कोई भी कंपनी फोकस कर रहे हैं, इफ यू आर फोकसिंग ऑन टीसीएस, एक्सेंचर और एनी ऑफ द अदर कंपनी, द थिंग इज आपका अटेंशन होना चाहिए कि आप किस टाइप से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी अगर मान लीजिए यू आर वेटिंग फॉर वन कंपनी ज्वाइनिंग, ओके, सपोज यू आर वेटिंग फॉर एक्सेंचर ज्वाइनिंग, बट दे आर नॉट गिविंग अपडेट। सो टिल दैट टाइम, जब तक कि उनका अपडेट नहीं आ रहा है, आप अदर अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना स्किल सेट्स इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं सकती है। सो द थिंग इज ऑलवेज अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, और ये सब नहीं सोचना है कि मैं इसे ज्वाइन नहीं करूं, उसे ज्वाइन नहीं करूं। देखो कैसे कंपनी से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। द थिंग इज दैट द थर्ड पॉइंट इज डोंट डिपेंड ऑन सम मास हायरिंग, ऑलवेज अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। like I am seeing on channel, I receive lot of queries from all of you that हमने यहाँ पर अप्लाई किया, कोई अपडेट नहीं आया। I understand that like if you are applying for any of the mass hiring or any of the company, so we are expecting an update from the company कि हाँ कुछ तो रिप्लाई आए, चलो रिजेक्शन ही आए पर कुछ तो रिप्लाई आए। ओके, एंड द थिंग इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव टू क्लियर, rejection is not last step of your career. Okay, rejection is not the last step, it is just like a gaining some experience जिससे कि आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में अच्छा ट्राई कर सकें। ओके, सो देखो आपने अप्लाई करा, ओके, देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स बिफोर दे आर सेंडिंग, लाइक वो एग्जाम मेल भेजने के पहले या कोई भी प्रोसेस मेल भेजने के पहले वो फैक्टर्स चेक करते हैं कि कैंडिडेट्स का रेज्यूमे कैसा है। ठीक है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब अपडेट आने को 4-5 महीने निकलने जा रहे हैं। ओके, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट अपडेट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड उस बीच में हमने कहीं अप्लाई नहीं किया, हमने अपनी स्किल सेट्स पे ध्यान नहीं किया, फिर हम ब्लेम डाल देंगे कि उन्होंने अपडेट नहीं दिया, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप ब्लेम मत डालिए, जस्ट थिंक अबाउट यू, लाइक कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको एक जगह नहीं बैठना है कि नहीं बस यहाँ से अपडेट नहीं आ रहा है तो अब तो अप्लाई नहीं करना है। ऐसी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस नहीं रखना है। ऑलवेज अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, और डे बाय डे टेक्निकल स्किल सेट्स या अपनी जो भी स्किल सेट्स है उसको आपको इंक्रीज करना है। फोर्थ पॉइंट इज द क्लियर माइंडसेट। ओके, like I see lot of candidates and many of the candidates are applying for multiple job opportunities, tech की भी, नॉन टेक की भी। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एमएनसी हायर कर रहे हैं, मैं आपको क्यों बोलता हूं कि आप अपना माइंडसेट क्लियर रखिए। देखो आपको पता है आपको टेक के साथ काम करना है या आपको नॉन टेक के साथ काम करना है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। बिकॉज सपोज यू आर फोकसिंग ऑन द टेक अपॉर्चुनिटीज, अब मान लीजिए आपने कोई नॉन टेक अपॉर्चुनिटी में अप्लाई किया, कस्टमर सर्विस एसोसिएट में, आपको ज्वाइनिंग भी मिल गई। ओके, अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर स्किल सेट्स यू ज्वाइन द कंपनी। ओके, बट आपको कंपनी में जाने के बाद पता चलता है दिस वर्क इज नॉट रिलेटेड टू मी, ये मेरा काम नहीं है, मैंने जो सीखा है या मैंने जो भी पढ़ा है, मुझे डेवलपर बनना था या मुझे डेवलपर की पोजीशन पे जाना था। फिर आप वहां पर कंपनी लीव करते हैं, फिर कभी बॉन्ड अमाउंट होता है उसको भी पे करना पड़ता है, फिर से वापस अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। क्लियर योर माइंडसेट, आइदर की टेक्निकल में जाना है, नॉन टेक में जाना है, और अप्लाई कीजिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में एंड फोकस। क्लियर माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक
बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ओके, डेली बेसिस पे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है, कोई जॉब नहीं लग रही है, कहीं से अपडेट नहीं आ रहा है, पर उस कंपनी में दूसरे कैंडिडेट्स को अपडेट कैसे आ जाता है? ओके, सपोज देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इन्फोर की हायरिंग थी, ओके, इन्फोर हायरिंग इज फॉर 23 एंड 24 बैच, अभी वो 25 बैच के लिए हायर कर रहे हैं। Many of the candidate received the test mail, okay, and some of the candidate not received the test mail. So what is the reason? Find the reason why are you not getting the test mail from the company. क्या वो रेज्यूमे की वजह से, क्या रेज्यूमे में जो टेक्निकल स्किल सेट है, क्या आपका रेज्यूमे एटीएस बेस्ड है, या कंपनी जिस हिसाब से आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रही है क्या उस हिसाब से आपका रेज्यूमे है? तो बजाय ब्लेम डालने के कि कुछ नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं आ रहा है, ये देखना है कि आप अपनी जॉब स्ट्रेटेजी को कितना अच्छा कर सकते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। And you have to choose any of the field, like technical or non-technical, and start your preparation, okay, continue your preparation on daily basis। wait नहीं करना है कि MNC आएगी उसके पहले अप्लाई करेंगे। Make one list, fifth point is make one list which MNC hiring every year and you have to check details। suppose you are focused, okay, your mindset is also clear that कि technical में जाना है, ठीक है, तो technical में जाना है, तो first of all make one list in your laptop PC that कौन कौन सी कंपनीज टेक्निकल के लिए हायर करती है, किस किस कंपनीज की कौन कौन सी पोजीशंस ओपन है, चेक देयर करियर्स पेज, चेक देयर लिंक्डइन पेज, एंड अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल। दैट्स द एडेड पॉइंट फ्रॉम माय साइड, that you have to update your LinkedIn profile, because updating your LinkedIn profile जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, रिक्रूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मेल भेजिए, उन्हें अप्रोच कीजिए फॉर द रेफरल अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। Sixth point is 2025 job strategy, mass hiring, resume shortlisting, skill set, and daily applying for jobs. You are from 25 batch and you are from previous batches. Let's talk about the previous batches. Suppose you are from 24, 23, 22 to previous batches. Okay. अब देखिए, आपके लिए मोस्ट ऑफ द मास हायरिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। जो टॉप टॉप कंपनीज थी, जैसे टीसीएस की फ्री एनक्यूटी भी हो चुकी है 24 के लिए, पहले काफी सारी हायरिंग्स भी हो चुकी है। अब आपके लिए बचता है कि दो पॉइंट बचते हैं। द फर्स्ट इज द अनदर मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है फॉर द 2024 बैच, सो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना है, आपको डेली बेसिस पे अप्लाई करना है। एंड द थिंग इज, अभी करियर्स पोर्टल की हायरिंग, रेफरल बेस्ड हायरिंग ज्यादा चल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर रेज्यूमे, ओके, एटीएस रेज्यूमे। रेज्यूमे के फॉर्मेट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। देयर आर टॉप कंटेंट क्रिएटर्स दैट दे आर प्लेस्ड इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, उनके आप फॉर्मेट ले सकते हैं, वहां से एटीएस रेज्यूमे बनाइए और अप्लाई कीजिए जॉब्स के लिए, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, होप नहीं खोना है, डोंट लूज होप दैट कि अभी रिजेक्शन आया, कोई अपडेट नहीं आया तो मैं ट्राई नहीं करूंगा, ट्राई करना है। एंड द थर्ड थिंग इज, many of the 2024 batch candidates placed from their on campus or off campus opportunity। अब अभी तक आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो एक रीजन फाइंड करना है कि क्यों प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्या हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, क्या हमारा रेज्यूमे स्कोर उतना अच्छा नहीं है, क्या हमने हमारे रेज्यूमे के उस टाइप से प्रिपेयर नहीं किया है, क्या हमने जॉब स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की है। सो ये सारा आपको खुद बैठ के सोचना है। एक दिन दीजिए अपने आप को कि हाँ, हमें किस टाइप से हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्लियर माइंडसेट रखिए एंड ट्राई कीजिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 2025 बैच, फॉर 2025 बैच मास हायरिंग्स आर रिमेनिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग मंथ, ओके। अभी बीएससी, बीसीए, बीकॉम एंड इन सब की हायरिंग चल रही है फ्रॉम द टीसीएस एंड अदर कंपनी। ऑन कैंपस हायरिंग्स आर आल्सो अनाउंस्ड फॉर द 2025 बैच। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफ कैंपस, guys, continue your coding preparation, continue your aptitude preparation, continue your daily preparation। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि जब कंपनी आए आपका फर्स्ट टाइम में प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। एक्सपीरियंस देखिए, चेक द एक्सपीरियंस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन आवर चैनल। आई एम अनाउंसिंग अगेन दैट फ्रॉम लास्ट 3 years on YouTube, I am providing the free preparation videos of companies। Like we are not selling any courses, we are not selling any workshop or any of the thing, okay। I am from tier 3 college, I cracked the Infosys InfoTQ opportunity in my third year in 2021 year, okay। And after that I secured the position at Infosys as a Infosys certified software programmer system engineer role, okay। After that I worked with lot of companies। So the thing is, एट दैट टाइम जब से मैंने खुद फ्री प्रिपरेशन की थी, ओके, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, आई टॉक टू माई सीनियर्स, ओके,
They said me like you have to practice coding on the hacker rank platform, hacker earth platform, lead code platform, जिससे कि मैंने कोडिंग की प्रैक्टिस की एंड आई क्रैक्ड द अपॉर्चुनिटी. So we are sharing the free preparation on our channel. Okay, online learning team is always ready to help all candidates. No need to worry about that. For the 2025 on campus, we already shared the free preparation of most of the company in on campus. For same off campus, we will share each and everything for free. Just want support from all of you. The seventh point is 2025 hiring preparation strategy. As we know that 2025 mass hiring in the coming month, so every company, like most of the company, follow the pattern. Either they are asking aptitude coding and interviews, either they are asking coding and technical and HR interview. For aptitude, India Big's website is very good. For aptitude, you have to prepare quants ability, okay, logical ability, that is reasoning, and the verbal ability, English part. Okay, for that, India Big's website 1000 plus questions are there daily. On daily basis you can practice, and you can like practice from like many of the books. Okay, there are a lot of books that is available that is related to like aptitude preparation. And the second thing is coding. For coding you can like start from hacker rank, because on hacker rank आपको स्टार्ट से लेके मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड फॉर इंटरव्यूज you have to check experience of selected candidates that they already working in that company, जिससे कि आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन होता रहेगा. एट्थ पॉइंट, चेक ऑन वीकली बेसिस इन हाउ मेनी जॉब्स यू अप्लाइड एंड फ्रॉम हाउ मेनी जॉब्स यू गॉट रिप्लाई. हम अप्लाई तो कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं अपडेट नहीं आ रहा है. बट आपको ये देखना है कि आपने कितनी जॉब्स में अप्लाई करा है इस वीक, आपको किस किस जॉब से अपडेट आया है, क्या वहां का अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, तभी तो आपको पता चलेगा. बिकॉज आई ऑलरेडी शेयर द 2024 रिमेनिंग मास हायरिंग कि 2024 से लेके प्रीवियस बैचेस को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए जॉब के लिए. एटीएस रेज्यूमे शेयर किया है. लिंक्डइन पे रिक्रूटर को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू रीच रिक्रूटर्स ऑन लिंक्डइन. एंड द थर्ड इज यू लाइक हाउ टू चेंज रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने शेयर की है. एवरीथिंग इज फॉर फ्री. ओके, मेरा मेन मोटो यही है दैट एवरी कैंडिडेट गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड नाइन्थ पॉइंट इज इंक्रीज स्किल सेट ऑन डेली बेसिस. अभी क्या होता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ. कंपनी देखती है, रेज्यूमे देखती है हमारा, ठीक है. अब मान लीजिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. सपोज आपने कोई कंपनी ओपन की. ओके, आपने कंपनी ओपन किया, आपके पास डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट आया, आपके पास दो एप्लीकेशन आई, एक कैंडिडेट वन, एक कैंडिडेट टू. कैंडिडेट वन का रेज्यूमे पूरा प्रॉपर है, उसमें सारी टेक्निकल स्किल सेट मेंशन है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स करे, हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा है. और कैंडिडेट टू के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, मतलब जो स्किल सेट है. ठीक है, इस पॉइंट को गलत नहीं समझना है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर किसी और चीज की बात कर रहे हैं, मैं स्किल सेट की बात कर रहा हूँ. तो आप क्या करेंगे, आप कैंडिडेट वन को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट अच्छा बना सकता है और क्लाइंट को आप एक बेस्ट प्रोजेक्ट दे पाएंगे. ओके, सो यही हर कंपनी फॉलो करती है ट्रेंड मोस्ट प्रोबेबली. क्योंकि देखो, हमारी कंपनी होगी तो हम ये चाहेंगे हमारे पास ऐसा कैंडिडेट हो जो हमारे प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सके. ओके, सो यही चीज होती है. कंपनी के पास बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं, पैरामीटर्स रहते हैं, जहां पर वो कैंडिडेट को फिल्टर करते हैं, उनके रेज्यूमेस को फिल्टर करते हैं. द थिंग इज कि उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहिए जिनके पास स्किल सेट्स हो, जिन्होंने हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा हो. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. करंटली फॉर द 2025 बैच टीसीएस हैक क्वेस्ट इज लाइव या टीसीएस कोड विटा. कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते उसमें. मैंने देखा है कि जो रीजनल हेड है वो आके मैसेज कर रहे हैं लिंक्डइन पे. जो टीसीएस की रीजनल हेड है वो ये बता रहे हैं कि इसमें अप्लाई कीजिए, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वहां पर आपको जॉब ऑफर भी मिल रहा है. बट हम ट्राई नहीं करते, हम डरते हैं, अरे इसमें क्या करना है, ये कोई हमारे काम का थोड़ी नहीं है. ऐसा नहीं होता है. ऑलवेज अप्लाई फॉर हैकेथॉन्स. ओके, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन हैकेथॉन. हायरिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है. मान लो कोई पीपीटी बेस्ड राउंड भी है जिसमें है ना आपको पीपीटी बनाना पड़ेगी, ग्रैंड फिनाले होगा, टीम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, करो. ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्योंकि आपको पता तो चलेगा कि आप में अंदर कितनी सारी स्किल सेट्स है, मतलब आपका अपना क्या लेवल है, आप क्या कर सकते हो. बैठे रहेंगे सोचेंगे वो कंपनी अपडेट नहीं दे रही है, एक कंपनी के भरोसे बैठ जाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे. सो ऑलवेज अप्लाई फॉर हैकेथॉन्स, हायरिंग चैलेंज. फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे. फ्री सर्टिफिकेट कीजिए, कोर्सेज कीजिए, अपने रेज्यूमे को प्रॉपर बनाइए. डे बाय डे फोकस ऑन स्किल सेट्स. ओके,
ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट्स। ओके, कोई भी कैंडिडेट हो, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। एक स्किल ही आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ा सकती है। Believe 11th point is believe in yourself and crack opportunity. I know that कि कैसा लगता है जब किसी कंपनी का अपडेट नहीं आता है या फिर रिजेक्शन हो जाता है कहीं से। उम्मीद रहती है कंपनी से कि ये मास हायरिंग कंपनी है, मेरी ड्रीम कंपनी है, यहाँ से मुझे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, मैंने अप्लाई किया है। बट गाइज, कब तक आप एक अपॉर्चुनिटी के पीछे वेट करेंगे? द थिंग इज यू हैव टू ऑलवेज अप्लाई फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। ओके, जैसे मान लीजिए टीसीएस मेरी ड्रीम कंपनी, मेरा नहीं हुआ, मैंने ट्राई किया, मैंने 100% दिया, मैं अगली बार 100% दूंगा। मैं ट्राई करता हूँ अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए, मैं एक्सपीरियंस लेके टीसीएस में जाऊंगा या फिर मैं और बड़ी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाऊंगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, ठीक है। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि खुद कभी मैं भी खुद एक कैंडिडेट हुआ करता था 2021 ईयर में। मैंने भी काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। आई एम फ्रॉम टियर 3 कॉलेज। मैं समझ सकता हूँ आप सारी बातें। द थिंग इज, आपको अपने ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा और आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। टेलीग्राम ग्रुप्स के बदौलत या फिर किसी को मनी पे करके हम जॉब अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कर लेंगे, ठीक है, कंपनी में एंटर भी हो जाएंगे। फिर कंपनी के अंदर जाने के बाद प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उनके इंटरनल एग्जाम रहती है, लाइफ में हम कैसे ग्रो करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑफ 2025 मास हायरिंग ट्रेंड्स, जॉब स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन आवर चैनल, ठीक है। मैं सारी वीडियोस आपको दे रहा हूँ। आपको डेली बेसिस पे सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है, आपको हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, रिज्यूमे आपका बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। स्किल सेट्स पे ध्यान देना है। जितनी ज्यादा स्किल सेट्स आप सीखेंगे उतना आपका काम अच्छा होने वाला है। स्किल सेट्स पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ हमने 10-15 चीजें सीख ली और आता एक भी नहीं है, ठीक है। आप एक एक करके सीखिए, बट आर्किटेक्चर को समझिए, देखिए कि आप कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो आपको ये पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एवरीथिंग इज फ्री ऑन आवर चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड इस वीडियो से आपको जो भी एक्सपीरियंस मिला है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट कि वीडियो कैसी लगी, कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, और जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की वो आपको कैसे लगी। और आई एम वेटिंग फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। गुड न्यूज गाइज, and believe me, we are sharing the free preparation videos, everything for free on our channel for all of you guys, okay, because you are my family. Online learning is my family. Thanks for watching the video.